أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق ارض و سما مدبر انس و جاں ہے، اور ہزاروں درود اس کے نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین اور معلم اعظم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جتنے بھی دن آپ کو ملے ہیں آپ نے ان کو ضائع نہیں کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ اللہ کی رضا پانے کے لیے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرنے کے لیے اور جوڑنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہوں گے، اور اللہ کریم ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم میرے لیے شکر ادا کرو اور تم انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ کوشش آج ہم نے یہ کرنی ہے کہ جو قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، ہم بھی ذاکرون میں شامل ہونے کی کوشش کریں، ہم بھی ذکر کرنے والوں کی محفل میں شامل ہو جائیں۔ ذکر کرنا صرف اور صرف قرآن کی تلاوت کی بات نہیں ہوتی، ذکر آپ کے سوتے میں بھی ہوتا ہے، جاگتے میں بھی ہوتا ہے، قرآن کو ہاتھوں میں لے کے بھی ہوتا ہے اور قرآن کو بند کر کے رکھ کے بھی ہوتا ہے۔ تو ذاکرون جو ہوتے ہیں ان تذکروں کو ہم نے آج یاد کرنا ہے، کوشش کرنی ہے ان کو دوبارہ اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں کہ ذکر کرنے والے ایک حدیث رسول ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک آتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، جن کی دعا اللہ کریم رد نہیں کرتے ہیں۔ ان میں پہلی قسم ان کی ہوتی ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہوں، ان کی دعا کو اللہ کریم رد نہیں کرتا۔ تو دوسری قسم عادل حکمران ہے، عدل و انصاف کرنے والے حکمران، اور تیسری قسم مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے اس کی بات ہے۔ تو یہ کہیں کہ آج جو پہلی کیٹیگری ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے، کوشش کرنی ہے ہم نے کہ اللہ رب العزت نے کچھ معاملات ہمیں بڑے ہلکے ہلکے سے، بڑے چھوٹے چھوٹے سے کلمات ہیں، بڑے ہلکے ہلکے سے وزن کے ہیں، جو زبان پہ بھی ہلکے پر میزان میں بہت بھاری ہیں، ان کو ہم اپنی زندگیوں میں جاری کر لیں، اپنی زبانوں سے جاری کر لیں۔ کچھ کلمات جب ہم اپنے بڑوں سے اور اسلاف سے سنتے تھے، ان کی عادتوں اور ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ جاری ہوا کرتے تھے، بسم اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، تو وہ کہہ لیجئے کہ ہمیں ایسے ہی وہ معاملہ دقیانوسی سا لگتا تھا۔ اب سمجھ آئی کہ وہ کتنے عاقل تھے اور کتنا خوبصورت سا معاملہ انہوں نے اپنی زبانوں سے جاری کیا تھا، اور وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل تھے۔ آج بات ہم کریں گے بسم اللہ کی فضیلت کے اوپر اور بسم اللہ کی اہمیت کے اوپر۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے قدم رکھتے ہیں، تو یہ بسم اللہ کے ساتھ چل پڑیے۔ فرمان رسول ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے، اللہ کے نام سے کیا جائے، وہاں پہ رحمتیں داخل ہو جاتی ہیں اور زحمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ حبیب کبریا کا فرمان ہے۔ تو یہ کہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو اپنی زبانوں سے اب جاری کرنا ہے، جو کہہ لیجئے نادانیوں میں ہم بھول چکے یا ہم ان کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے، اس کی آیت آتی ہے،
और वहां पे कुरान की सूरह नमल आयत नंबर 30 की आयत जो है, वहां पे कह लीजिए कि ये आपके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है, इसकी आयत आपको मिलती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शहजादी बिल्किस को जब खत लिखा था, तो उसके ऊपर इसको, इस जुमले को या इस कह लीजिए आयत को लिखा गया था। और फिर कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब सूरह नमल में उस सूरत को उतारा और उसमें इस आयत के बारे में बताया, तो फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मामलात में और खतूत में और कह लीजिए कामों के शुरू में इसी आयत को लिखवा दिया, लिख दिया, लिखना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान की एक आयत भी है। और फिर ये आयत जो है, हर सूरत से पहले कुरान में ये भी लिखी गई, सिवाय एक सूरत के जिससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना लिखी गई ना पढ़ी जाती है, वो सूरह तौबा है। सूरह तौबा में उससे पहले सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आपने बोलना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस सूरत से पहले पढ़ी नहीं जाती और बोली नहीं जाती। उसके भी कुछ जब तफसीर उसकी आती है तो बड़े मामलात बताए जाते हैं, इसलिए कि बाज़ रवायात के मुताबिक और बाज़ तफसीर के मुताबिक जो पिछली सूरत है उसी का मजमून ही आगे चलता जा रहा है। और बाज़ के मुताबिक इसलिए कि कमांडर अपनी आर्मी को जब ऑर्डर दे रहा है, जब उसके ऊपर जुल्म हो तो उसको अपने आप का जब दिफा करना है तो किस तरीके से करना है, तो इसलिए उसका मामला अर्रहमान अर्रहीम से शुरू नहीं हो रहा, उसका जो है सिलसिला तफसीर में कुछ मुख्तलिफ आता है। बिस्मिल्लाह के ऊपर बात करते हैं। बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से। अब ये आपको अक्सर मामलात में ये जो बताया जाता है, खाना शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। अब ये ज़हन में रख लीजिए कि ज़रूरी नहीं है, कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ़ बिस्मिल्लाह बोली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी आयत नहीं बोली जाती। बिस्मिल्लाह खाने से पहले बिस्मिल्लाह, घर में कदम रखते वक़्त बिस्मिल्लाह, बिस्तर पे लेटते वक़्त बिस्मिल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात को तुम सोने लगो तो तब भी अपने बर्तनों को ढांप दिया करो, बिस्मिल्लाह कह के किसी चीज के साथ उनको ढांप दिया करो। जब आप घर से बाहर निकलने की दुआ भी देखते होते हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो उसका आगाज भी बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से होता है। हदीस मुबारका है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सवारी फिसल जाए तो बिस्मिल्लाह मुंह से निकाल दीजिए, अल्लाह के फरिश्ते उसको थाम लेते हैं। तो अक्सर औकात हमारे असलाफ ये किया करते थे कि अगर कोई गिरने लगे, अगर कोई फिसलने लगे तो बिस्मिल्लाह के अल्फाज जो थे, और हमारी नादानियों की वजह से ये हमारी ज़िंदगियों से कम हो गए हुए हैं। तो यही कोशिश हमने करनी है कि हम दोबारा अपनी इस्लामी रवायात को लेके चलें, अपनी इस्लामी तालीमात को लेके चलें और उनके साथ अपने रोज़मर्रा के मामूल और रोज़मर्रा की जो हमारी रूटीन है उसको उसके साथ कह लीजिए ज़ीनत दे दें, उनके ज़रिए से सजाएँ। जैसे कि बुलंदियों की तरफ चढ़ना हो तो अल्लाहू अकबर, और घर में आपको कई बार सीढ़ियों के ऊपर कदम रखना पड़ता है, ऊपर चढ़ना पड़ता है, या कह लीजिए कई बार आपको नीचे उतरना पड़ता है। अगर आप ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान साथ लेके चलें तो ये कह लीजिए कि आपके लिए वो पूरा दिन आप कीमती मोतियों से बढ़ के अजर व सवाब इकट्ठा करते रहते हैं। आप एक और बात ज़हन में रख लीजिए, ये जो ज़िक्र अल्लाह है यानी बिस्मिल्लाह किसी चीज़ से पहले भी करना, ये हदीस रसूल एक मिलती होती है। आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक आते हैं, ये जो अज़कार हैं, ये जो ज़िक्र अल्लाह है, ये जो अल्लाह की बात है, चाहे वो बिस्मिल्लाह की सूरत में हो, चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह की सूरत में हो, चाहे सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम की सूरत में हो, चाहे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी की सूरत में हो, चाहे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की सूरत में हो, ये अज़कार जब आपकी ज़ुबानों से निकलते हैं तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इन कलिमात को ऊपर उठा लिया जाता है, ये बुलंदियों की तरफ सफ़र करते हैं और ये बुलंद होते 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 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के पास पहुँच जाते हैं, और ये अर्श के आस पास घूमते और इनकी बिन बिनाहट
अर्श के पास सुनाई दी जाती है और सुनाई देती है। इसलिए अपनी ज़ुबान को बंद ना रखा करें, हर वक़्त उसको अल्लाह के ज़िक्र से रत्बुल लिसान रखिए। ये मेरे नबी के फरमान आते थे। एक साथी ने पूछा था, अल्लाह के हबीब कौन-सा ऐसा काम करें कि हमें कुछ और करने की हाजत न रहे? फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपनी ज़ुबानों को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखो। अब आज की साइंस आपको बड़ी तहकीकात नई-नई दे रही है, बड़ी चीज़ें आपके सामने वो आती हैं, तो आपको अगर दीन के बारे में साथ समझ हो, तो बड़ी खूबसूरत सी बातें लगती हैं। आज की साइंस आपको बताती है, अगर आपके करीब पानी है, तो अगर आप अल्लाह का ज़िक्र या बिस्मिल्लाह बोलते हैं, आपकी जो साउंड है, आपकी जो आवाज़ है, ये साउंड उस पानी को टच कर जाती है। उस पानी को टच करने के बाद, उस पानी के पूरे पानी में ये तासीर दाखिल हो जाती है, ये तासीर शामिल हो जाती है। साइंसदान बता रहे हैं कि अगर उस पानी को, जिसको आपने बिस्मिल्लाह करके पीना शुरू किया था, बिस्मिल्लाह के अल्फाज उसको टच किए हैं, तो वो पानी को अगर जमा दिया जाए, उसकी बर्फ बन जाए और बर्फ के तोड़ के उसके मुख्तलिफ टुकड़े कर दिए जाएं, हर टुकड़े को अगर माइक्रोस्कोप के जरिए से देखा जाए, तो जो तासीर कह लीजिए ये अल्लाह का जिक्र टच करने से पहुंची है, वो पूरे के पूरे टुकड़ों में मौजूद होगी। कोई भी टुकड़ा ऐसा नहीं होगा जिसमें वो तासीर मौजूद ना हो। तो ये कहें कि जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी कीमती तालीमात थी कि बिस्मिल्लाह करके पानी को शुरू कीजिए पीना, बैठ के पिया कीजिए, पानी के अंदर सांस ना लीजिए, मुंह पीछे करके सांस लीजिए, तो उसको रोक के, यानी 3 बार सांस बाहर ले सकते हो, ठहर ठहर के पानी को पीना। तो ये आपको जो तरीके बताए गए थे, हमने तहकीक नहीं की, इसलिए हमें पता नहीं चला। अगर हम तहकीक करते तो फिर हमें पता चलता कि ये पानी जो हम पीने लगे हैं, अगर बिस्मिल्लाह करके पिएंगे, सुन्नत रसूल के मुताबिक पिएंगे, तो ये हमारे लिए शिफा बन जाएगा, ये हमारे लिए रहमत बन जाएगा, ज़हमतें दूर हो जाएंगी। खाना खाने से पहले की बात भी यही है। जो खाना है, आप जानते हैं, वही खाना है, कुछ लोग खाते हैं उनको तकवीयत मिलती है, कुछ लोग खाते हैं उनकी बीमारी बढ़ जाती है, कुछ लोगों को वो बीमारी का बायस बन जाता है। किसी को चावल सूट नहीं कर रहे, किसी को गंदम सूट नहीं कर रही, किसी को मीठा सूट नहीं कर रहा, किसी को कोई चीज़, किसी को कोई चीज़, वो खाने से बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। वही खाना है, कुछ लोग खाते हैं तो उनके लिए तक़वियत बन जाती है, ताकत बन जाती है। और हलाल का खाना, और कह लीजिए अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक बिस्मिल्लाह करके बनाने वाले और बिस्मिल्लाह करके पकाने वाले और बिस्मिल्लाह करके खाने वाले, जब इनकी रगों से उतरता है, तो वो जब खून का हिस्सा वो खुराक बनती है, तो वो खून कह लीजिए अल्लाह के दीन को लेके, नबी के फरमान को लेके और अल्लाह के रसूल की मोहब्बतों को लेके इस जिस्म में कह लीजिए रूगर्दानियाँ करता है और पूरे जिस्म के अंदर वो कह लीजिए अपना सर्कल पूरा करता है। इसलिए कि जब माएँ अल्लाह का ज़िक्र करके बिस्मिल्लाह कह के खाना बनाएँगी, बिस्मिल्लाह कह के खाना तैयार करेंगी, बिस्मिल्लाह कह के लुक़मा अपने बच्चे के मुँह में डालेंगी, बिस्मिल्लाह कह के उसकी प्लेट में कह लीजिए खाना जब उंडेलेंगी, तो ये सारी की सारी तासीर उसमें जाती जाएगी। और वो तासीर सिर्फ़ एक लुक़मे या एक नवाले में नहीं होगी, पूरे खाने में होगी। तो इसलिए ये मामलात जो हैं इतने याद रखने वाले कि हमारे लिए ये छोटा-सा एक जुमला, एक छोटा-सा हल्का-सा लफ़्ज़ बिस्मिल्लाह, पर जानने की बात ये है कि आपने मानी और मफ़हूम के साथ जानना है और तवक्कुल करके इस लफ़्ज़ को ज़ुबान से निकालना है कि मैं मेरे रब के ऊपर तवक्कुल कर रहा हूँ कि उसी के हाथ में मेरी जान और कब्ज़ा-ए कुदरत है और उसी के हाथ में दुनिया के सारे मामलात हैं, रहमतें भी उसी के पास खज़ाने हैं और ज़हमतों को दूर करने वाला भी वही है। तो ये कह लें कि तवक्कुल पूरा करके जब ये ज़ुबान से बिस्मिल्लाह निकालते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि रूह व बदन तक इसकी तासीर पहुँचती है और वो आपके लिए रहमतें और बरकतें लेके आते हैं। एक और हदीस मुबारक आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाओ, तो अपने बिस्तर को झाड़ लिया करो। 3 बार उसको झाड़ना है। कैसे? बिस्मिल्लाह कह के। पूरी आयत की बात नहीं मैं कर रही, मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह कह रही हूँ।
बिस्मिल्लाह कह के अपने तकिए को, अपनी चादर को झाड़ लीजिए, हाथ मार के झाड़ लीजिए, उठा के झाड़ दीजिए, 3 बार बिस्मिल्लाह कह के झाड़िए। आज की साइंस आपको बता रही है कि आपके सोते वक़्त जिस्म से गिरने वाले खलिए या गिरने वाले जो डेड सेल्स होते हैं, जो आपके जिस्म से, आपकी जिल्द से उतरते हैं रात को सोते हुए, उसको अगर 40 या 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी गर्म पानी में धोया जाए, तो वो बिस्तरों से और उन चीज़ों से वो ख़त्म नहीं होते जब तक उनको झाड़ा ना जाए। ये हिकमतें हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हमें हिकमतों की तालीम दे के गए थे। और हमने उन मामलात को मामूली सा समझ लिया। ये बहुत बड़ा-सा मामला है। रात को सोते वक़्त अपने बिस्तर को अपने सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह कह के 3 बार झाड़ दीजिए। एक दफ़ा झाड़िए, फिर बिस्मिल्लाह बोलिए, फिर हाथ मार दीजिए ऊपर, फिर बिस्मिल्लाह बोल के फिर उसके ऊपर हाथ मार दीजिए। तो क्या होगा? आसान सा जुमला ज़हन में रखिए, रहमतें दाखिल हो जाएँगी, ज़हमतें दूर हो जाएँगी। अगर वो डेड सेल आपके जो पड़े हुए हैं, वो अभी मौजूद हों और आप रोज़ उन्हीं पे सो जाओ और उन्हीं में इज़ाफ़ा होता जाए, तो बीमारियों का सबब बन जाते हैं। इसलिए उन बीमारियों को हटाना। एक और हदीस मुबारका साथ लेके चलिए। आप जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई गई एक दुआ है, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो, तकलीफ हो, आप बीमार हो, तो क्या कीजिए? 3 बार बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि बोलिए और उसके बाद आपकी जो दुआ बताई जाती है, आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर, 7 बार इस आयत को पढ़ दीजिए, तकलीफ, बीमारी, दर्द दूर हो जाएगी। ये छोटे-छोटे अल्फाज़ हमारे लिए भारी भरकम अजर लेके आ रहे हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ करना क्या है? इन अल्फाज को अपनी आदत बनाना है, इन कलिमात को अपनी आदत में शामिल करना है, ताकि हमारी आदत हो जाए। हमारी आदत के साथ हमारी ज़ुबान से बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्फाज हमारी ज़ुबानों से निकलने शुरू हो जाएँ। और ये जो तालीमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, आप देख लीजिए, छोटा सा एक जुमला है। आप बात देखें कि जब एक बार एक हरफ हम कुरान का पढ़ते हैं, तो 10 नेकियां हमें मिलती हैं। 10 नेकियां हमें मिलती हैं अगर एक हरफ हम कुरान का पढ़ें। फरमाया आका दो जहां ने, अलिफ लाम मीम को एक हरफ ना समझना, ये 3 हरूफ का मजमुआ है। अलिफ अलहदा है, लाम अलहदा है, मीम अलहदा है। तो ये अलिफ लाम मीम अगर सिर्फ आप बोल दें, तो 30 नेकियों के हकदार बन जाते हो आप। आप जानते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पूरा जुमला बोलते हैं, पूरी आयत को बोलते हैं, तो इसके 19 हरूफ हैं। 19 वर्ड इसमें आते हैं, 19 हरूफ। 190 नेकियों के हामिल होते हो आप, अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलें। तो ये आपके लिए इतनी नेकियां जो हैं, वो आपको चलते फिरते मिल जाना और ज़हमतें दूर होते जाना और रहमतें शामिल होते जाना। आपके जितने रोज़मर्रा के काम हैं, सुबह आप सो के उठते हैं, बिस्मिल्लाह कह के अपने बिस्तर से उठिए। आप जूता पहनने लगे हैं, बिस्मिल्लाह कह के पहनिए। कदम उठाने लगे हैं, बिस्मिल्लाह कह के उठाइए। क्या होता जाएगा? आपका रास्ता सामने साफ होता जाएगा, रहमतें जो हैं निछावर होती जाएँगी, ज़हमतें जो हैं वो दूर होती जाएँगी। ये इस जुमले को आदत बना लेने से और फिर तवक्कुल और मोहब्बत और इखलास के साथ पढ़ने से आपके लिए दुनिया के मामलात जो हैं वो आसान तर और रहमत वाले होते जाएँगे और आपसे परेशानियाँ, दुश्वारियाँ दूर होती जाएँगी। आज़मा के देखा कीजिए। जब आज़माएँगे आप, यानी आज़माइश क्या है? आपको चाहे नज़र ना आए, लेकिन आपके दिल में इत्मीनान आ जाता है, दिलों को सुकून मिल जाता है और आपके दिल खुश हो जाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, ए अल्लाह के रसूल, कैसे पता चले कि ये नेकी है, जो हमने काम किया है, ये नेक काम किया है या हमसे कोई नेकी का कदम उठाया गया है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़
तुम्हारे जो अमल तुम्हारे दिल को सुकून दे दे और दिल को खुशी दे दे, वो नेकी होती है, उसमें नेकी का पहलू होता है। यकीन जानिए, अज़कार अल्लाह के और सुन्नत मेरे हबीब की, ये आपके दिल को जितनी खुशी और जितना सुकून देते हैं, दुनिया की ख्वाहिशों से हमें कभी वो सुकून नहीं मिलता, कभी वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती, कभी हमारे दिल उतने खुश नहीं होते। तो इसलिए आपके जो भी कदम उठाए गए जो नेकियों के हैं, वो आपके लिए दिलों को खुश बनाने वाले और दिलों को कह लीजिए आसानियाँ देने वाले ही होते हैं। तो आप अपने अमलों को चेक कर लिया कीजिए, क्या इस अमल के ज़रिए से आपका दिल खुश हुआ? अगर आपने ये बिस्मिल्लाह की आदत बना ली है और उसके हर मामले में इसको आपने शामिल कर लिया है, तो क्या आपके दिल को खुशी और सुकून मिलता है? आप मुतमईन होते हो? दिल को एक कह लीजिए बहुत खूबसूरत सी एक तक़वियत मिलती है? अगर मिलती है तो इसको छोड़िए नहीं, इसको जारी रखिए। इन अल्फाज के साथ कह लें अपनी इस्लाह कीजिए। अक्सर बात हम करते होते हैं, अपने रब को जानिए कुरान के ज़रिए और हबीब किबरिया के फरमान के ज़रिए। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आपके ऊपर रहमतें उंडेल रहा है, रहमतें बरसा रहा है, वो देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके से आपके लिए रहमतों के दरवाज़े खोले हुए हैं। हम ही नादान बने बैठे हैं, हमें ही नहीं पता, हम कितनी देर खामोशियों से बैठे रहते हैं और कितना वक़्त ज़ाया कर देते हैं। अपने वक़्त को ज़ाया ना कीजिए, सिर्फ़ एक चीज़ ऐसी है जो अहले जन्नत जो हैं, जब जन्नत में पहुँच जाएँगे तो वहाँ पे पहुँच के भी एक चीज़ का उनको अफ़सोस होगा, वो कौन-सी चीज़ है? जो दुनिया में उन्होंने वक़्त ज़ाया कर दिया, उसका अफ़सोस करेंगे कि काश हमने वो लम्हे ज़ाया ना किए होते, काश हमने वो वक़्त ज़ाया ना किया होता, काश हमारी ज़ुबानों से ज़िक्र अल्लाह जारी रहता, काश हम उन लोगों में शामिल होते, जिनके लिए आपने फरमाने रसूल पढ़ा है कि जिनकी दुआ मुँह से निकली हुई रब रद्द नहीं करता, वो जो अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करते हैं। उनके मुँह से कोई दुआ निकल जाए तो मेरा रब उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। तो ज़िक्र अल्लाह ये उसके लिए आपका हाफ़िज़े कुरान होना ही ज़रूरी नहीं है। आपको जो अल्लाह की बात अल्लाह के एहकाम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आपके पास आती हैं, उनको अपनी ज़ुबान से जारी कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दरूद भेजा कीजिए, दरूद पढ़ा कीजिए। आपके ऊपर, आपके कह लीजिए, आपकी ज़िंदगी के मामलात के ऊपर रहमतें ही रहमतें बरस जाएँगी और आपके ऊपर ये तो आपको हदीस रसूल मिलती है, जो एक बार दरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमा देता है। उसके 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं, उसके 10 गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। तो ये छोटे-छोटे से जुमले जो होते हैं, कोशिश किया कीजिए पूरा दरूद जो आप नमाज़ में पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी, उस पूरे दरूद को पढ़ा कीजिए और उसके ज़रिए से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजा कीजिए। अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते ये काम कर रहे हैं, तो हमें कौन-सी कह लीजिए इसमें दूरी और देरी लग रही है कि हम इसमें उतने मुलव्वस नहीं हो रहे, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में मुलव्वस होना है। तो जो बिस्मिल्लाह की बात हम कर रहे हैं, ये हमारे मामलात में इसका आगाज़ जो है, इसको हम बड़ा ज़रूरी समझ लें। आप ज़हन में रख लीजिए, हदीस रसूल आपको मिलती है कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह करने से क्या है? शैतान दूर हट जाता है और जो खाना आप खाते हैं, वो ग़ज़ा जुज़्व बदन बन के आपको ऐसी तक़वियत देती है, जो दीन के मामलात में आप शामिल हो जाते हो और सुस्तियाँ और काहलियाँ दूर होने लग जाती हैं। अगर आप बिस्मिल्लाह कह के खाना नहीं खाते, तो शैतान आपके नवालों में और आपके खानों में आपका हिस्सेदार बन जाता है। इसीलिए आप कई दफ़ा देखते हो कि बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो बार-बार और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाते रहते हैं, लेकिन वो सैर नहीं होते, उनका पेट नहीं भरता, इसलिए कि खाना जो है वो शैतान भी साथ खाता जा रहा है, वो भी हिस्सेदार बन रहा है, तो आपको उसकी तक़वियत नहीं मिल रही। अपनी आदत बना लीजिए जो नवाला, जो लुक़मा, जो पानी का सिप आप अपने मुँह में डालने लगे, बिस्मिल्लाह, कोई देर नहीं लगती है, कोई मुश्किल जुमले नहीं हैं, कोई याद रखने की बड़ी-सी बात नहीं है, इसको अपनी ज़ुबान से जारी कर लीजिए।
ये कलिमात जो हैं इनको बोलते जाइए। तो ये छोटी-छोटी सी याद दहानियाँ होती हैं। ये हम याद दहानियाँ ही लेके आपके पास आते हैं। गो कि आप वाकिफ़ होते हो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान लेके चलिए। हदीस रसूल आती है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम्हारा गुज़र जन्नत की क्यारियों से हो, तो खूब चख लिया करो। पूछा अल्लाह के हबीब के दोस्तों ने, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जन्नत की क्यारियां कौन सी हैं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र के हलके, अल्लाह के जिक्र के हलकों से। और जो लफ्ज आपके लिए हदीस मुबारका का आता है वो ये कि खूब चरना, जैसे जानवर पेट भरा हुआ भी हो तो फिर भी कुछ खा पी लेते हैं और फिर तन्हाइयों में बैठ के उससे लुत्फ अंदोज होते हैं। यही मामला करना है। जहाँ कहीं से गुजरिए अल्लाह के जिक्र को याद रखिए, अपने दिलों में ले लीजिए, तन्हाइयों में बैठ के जिक्र कीजिए, कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कॉल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिस्मिल्लाह की अहमियत और फजीलत के ऊपर। ये छोटा सा जुमला आपके लिए कितनी बरकतें लेके आ रहा है और कितनी बरकतें उसके साथ आती हैं। तफसीर में एक बात लिखी हुई आती है, एक दफ़ा एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने कहीं से गुजर हुआ किसी बस्ती से, तो जब वहां से गुजरे तो उस बस्ती के जो सरदार थे उसको किसी मूजी जानवर ने डस लिया था। तो उनमें से कोई शख्स आपके पास आया और पूछा कि आप में से कोई झाड़ फूंक जानता है, कोई करने वाला है? तो ये सहाबी उनके साथ चले गए और जाके उसको दम किया, जिससे उस शख्स को आराम आ गया। और वो जो दम था वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लें जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वादी आपकी बात बहुत कम आ रही है। आवाज बहुत थोड़ी आ रही हाँ, है। बहुत कम आ रही है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। माशाल्लाह जी बहुत जी देर बाद आपसे बात हो रही है। बहुत खुशी हुई आपको देख के। मुझे समटाइम मुझे लाइव प्रोग्राम देखने का मौका नहीं मिलता। दूसरा देखती हूँ जो रिपीट होता है। आज लाइव मिल गया है, जज़ाकल्लाह खैर। बाजी एक सवाल करना चाह रही हूँ, जी पूछने जी से कि जैसे आपने भी फरमाया और मैंने हदीस भी सुनी हुई है कि जब हम बिस्तर पे जाते हैं तो 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 दफा बिस्तर को झाड़ लें और झाड़ने के बाद लेट के ये कलमात पढ़ने हैं। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाजी नो अस्तगफिरुल्लाह अल अजीम अल्लाजी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम अतूबु इलैह। क्या ये मैं सही पढ़ रही हूँ? ऐसे सुना मैंने, हदीस किसी से सुनी है। जी, मैं आपको भी बता देती हूँ। और कुछ पूछेंगी? जी, आप जो बता रहे हैं, आप 2 चीज़ों को आप इकट्ठा कर रहे हैं। जो बिस्मिल्लाह वाली हदीस मुबारिका है, वो अलहदा है और ये जो अज़कार हैं, ये अज़कार के साथ आपने पढ़ना है। तो ये दुआ जो आप पढ़ रहे हो, ये रात को सोते वक़्त के अज़कार होते हैं, तो उनके साथ ये पढ़ी जा सकती है। पर इसके साथ इकट्ठा नहीं है कि आप पहले बिस्मिल्लाह करके बिस्तर को झाड़िए और उसके बाद ये पढ़िए, ऐसा नहीं है। वो जो है, वो एक सुन्नत का तरीका बताया गया और उसके बाद के अज़कार जो हैं, जो आप रात को सोते वक़्त पढ़ते हो उसमें, चाहे वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33-33 बार पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ना, सूरह मुल्क की आखिरी 2 आयात पढ़ना, ये चीज़ें आपको जो अज़कार हैं और कुल जो हैं वो आखिरी 3 जो कुल हैं वो 3-3 बार अदा करना। अस्तगफिरुल्लाह, ये जो आप पढ़ रहे हो उसी तरीके से अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह 10 बार पढ़ना। ये आपको बड़ी प्यारी सी हदीस रसूल मिलती है। जब रात को आप पढ़ के सोते हैं तो ये सोते वक़्त के अज़कार होते हैं। तो ये अलहदा है, वो जो प्रैक्टिस है वो अलहदा है। अल्लाह करीम आसान फरमा दे। बात कर रहे थे हम कि वो जो सहाबी थे, जब वो गए तो उनको जिनको किसी जानवर ने डसा हुआ था, उनको उन्होंने दम किया। तो बिस्मिल्लाह
रहीम। बाज रवायात में आता है कि उन्होंने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के दम किया था, और बाज रवायात में आता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ के दम किया था। सूरह फातिहा भी शिफा है, आप जानते हैं, उसका तो नाम ही सूरह शिफा है। तो इसी तरीके से ये कह लें कि वो जो मामला है बिस्मिल्लाह का, वो आपके लिए नुकसानात और ज़हमतों को दूर हटा देता है, और आगे बरकतें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं, और रहमतें आपके मामलात में दाखिल हो जाती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं आपकी याद रखने के लिए होती हैं। और आप जानते हैं ना, शैतान हमें अच्छी बातें बड़ी जल्दी भुला देता है, और ये याद करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, और हमें बार-बार सुनना पड़ता है। इसलिए तो कुरान का नाम कुरान रखा गया कि बार-बार पढ़ा जाए, बार-बार सुना जाए, बार-बार इन मामलात को आपके गोशो-गुज़ार किया जाए, ताकि जो चीज़ हम भूलने जा रहे हैं उसको हम दोबारा अपनी ज़िंदगियों में जारी कर लें। आपने कुरान की सूरह वाक़िया पढ़ी हुई है, वहाँ पे ज़िक्र होता है साबिकून का, कि सुबकत ले गए, जो सबसे पहले, यानी ऐसे 3 ग्रोह, जब सूरह वाक़िया पढ़ेंगे वहाँ पे भी बताया गया कि 3 किस्म के ग्रोह होंगे। एक वो ग्रोह है जो सबसे पहले आगे चला गया, जो जन्नतों में दाखिल हो गया, सुबकत ले जाने वाले, साबिकून अल मुफर्रिदून, यानी ये अल्फाज भी आपको मिलते होते हैं कि जो आगे बढ़ गए, जो जन्नतों में सबसे पहले चले गए, ऐसा ग्रोह जो जन्नतों में पहले दाखिल हो जाए। उसके लिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, वो कौन लोग हैं जो सुबकत ले जाने वाले हैं, जो आगे बढ़ जाने वाले हैं, जो जल्दी कह लीजिए जन्नतों में जाने वाले हैं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह को कसरत से याद करने वाले, ये वो लोग हैं जो साबिकून हैं, कि जो आगे बढ़ जाने वाले हैं। अल्लाह करीम हमें भी उनमें शामिल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने वाले, देखने वाले, मोहब्बतें करने वाले, दुआएँ देने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको साबिकून में शामिल फरमा दे। अल्लाह करीम हमें ज़िक्र करने वालों में शामिल फरमा दे। अल्लाह करीम हमें जन्नत वालों में शामिल फरमा दे। अल्लाह करीम हमें भी उनमें हिस्सेदार कर दे। तो ये देखिए कि ये जो छोटे-छोटे कलिमात हैं, और ये जो छोटे-छोटे जुमले हमें नज़र आ रहे हैं, वो आपके लिए कितने बड़े रहमतों के दरवाज़े खोलते हैं, और आपके लिए कितनी ज़्यादा नेमतें लेके वो आते हैं। आप जानते हो, बाज़ दफ़ा हम कुछ मामलात इस तरीके से करते हैं कि उससे उससे पहले कोई भी बात अगर, या कोई भी असलूब, या कोई भी काम, उससे पहले बिस्मिल्लाह, और ये जो रिमाइंडर बार-बार मैं आपको दे रही हूँ, वो ये कि ये जो कलिमात आपकी ज़ुबान से निकलें, ये अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करके निकलें कि जिसको पुकार रहे हो, वो अल हई अल कय्यूम है, वो मुश्किलात की गिरह को खोलने वाला, वो रिज़्क के दरवाज़े खोलने वाला, और फ़ैसले उसी के होते हैं। ये कह लीजिए, जब वो किसी चीज़ को रोकने का इरादा कर ले तो कोई ताकत उसको खोल नहीं सकती। जब वो किसी चीज़ को कह लीजिए अता कर दे तो कोई शय उसे रोक नहीं सकती। फ़ैसले उसके होते हैं। तो उस पे तवक्कुल कीजिए कि उसी के हाथ में रहमतें हैं। तो बिस्मिल्लाह, मैं उस अल्लाह के नाम से शुरू करने लगा हूँ। मैं उस अल्लाह के नाम से जारी करने लगा हूँ। तो ये मामलात आपके लिए जितना इख़लास और तवक्कुल बढ़ता जाएगा, उतनी तासीर बढ़ती जाएगी। ये बात ज़हन में रखा कीजिए। हमारी दुआएँ और हमारे ये कलिमात हैं, बाज़ दफ़ा हमें लगता है कि उनमें कोई ऐसा हमारे दिल के ऊपर असर नहीं आया। इसलिए कि जितना यहाँ से आप अंदर से, एक अक्सर बात हम करते होते हैं, मिसाल देते होते हैं कि आपको एरो को, तीर को अगर किसी हदफ पे फेंकना या पहुँचाना हो, तो आप क्या करते हो? उसको अगर बिल्कुल ढीले हाथ से पकड़ के तो खींच के फेंकोगे, तो अक्सर ये होगा कि वो मंज़िल पे नहीं पहुँचेगा, पहले ही गिर जाएगा, और ये कह लीजिए कि वो फ़ज़ूल और नकारा हो जाएगा। आपको अगर उसको मुकम्मल हदफ पे पहुँचाना है, तो पहले आपकी बिनाई, आपकी सोच, आपका तसव्वुर, और फिर उसके ऊपर आपकी गिरफ्त मुकम्मल तौर पे पीछे डीप डाउन ले जाइए, और उसके बाद सोच के उसको छोड़िए। यकीन मानिए, वो अपने हदफ पे पहुँचता है। दुआ आपके पास वो तीर होता है। इसको अगर हदफ पे पहुँचाना है, डीप डाउन दिल के अंदर, दिल की गहराई में ले जाइए। वहाँ से वो अल्फ़ाज़ मोहब्बतों और इख़लास और तवक्कुल के साथ निकालिए। यकीन जानिए, मंज़िल से पहले तीर नहीं गिरेगा। ये मंज़िल पे पहुँच जाएगा। तो इसलिए ये जो कलिमात आपको बताए जाते हैं,
इनके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले ये दिल की जो ज़मीन है, वहाँ पे जो गिरफ्त है, उसको मज़बूत कीजिए। बिस्मिल्लाह को पकड़ के निकलने वाले हैं और लेके चलने वाले हैं, और ये अल्फ़ाज़ के साथ ये काम जारी होने लगा है, तो आपके मामलात जो हैं वो कामयाब तरीन और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएँगे। आप जानते हैं, ये जो कलिमात आपको बताए जाते हैं, अक्सर औक़ात याद दहानी होती है। आप अगर एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, एक बार, तो वो कलिमा ऐसा है कि वो कलिमा जो है काफ़िर को मोमिन बना देता है। अगर इखलास और दिल की गहराइयों से निकले तो। वो काफ़िर को मोमिन बना देने वाला, वो ना मानने वाले दिल को मानने वाला बना देने वाला। वो इस ज़ुबान के कलिमात अगर नकारा निकल रहे हैं तो ज़ाया हो रहे हैं। ये ऐसे कलिमे हैं, अगर कह लीजिए इखलास के साथ निकलें तो अल्लाह के अर्श के आस-पास इनकी बिन-बिनाहट सुनाई देती है। ये वहाँ तक जाके गूँजते हैं। अगर कोई अल्लाह का बंदा 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, तो फिर उसको क्या अजर व सवाब है। एक कॉलर मौजूद है, बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी एक बात और पूछनी थी, वो मैंने आज ही एक बयान सुना है, उसके बारे में आपसे मैं पूछना, थोड़ा सा दिल में थोड़ा सा डाउट था, इसलिए कि मैंने सुना, बयान में सुना है कि जब इंसान फौत हो जाता है ना, तो तीसरे चौथे दिन बाद उसके नाखून झड़ना शुरू हो जाते हैं, और जो उसके ऑर्गन होते हैं ना पेट में, वो भी किसी तरह तीसरे चौथे दिन वो जाया हो जाते हैं, यानी कि पेट से निकल जाते हैं। मुझे बहुत जैसे कि मुझे झटका लगा कि मैं हमेशा सुनती आई हूँ कि जो अल्लाह के नेक इंसान होते हैं, बंदे होते हैं, वो उनका जिस्म ता क़यामत उसको कुछ नहीं होता, वो वैसे ही पड़ा रहता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि आप मुझे बता देंगी ये बिल्कुल सही है? जी, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये जो दुनिया से रुखसत होने के बाद का जो मामला है, आप कह लीजिए कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जानते होते हो, हम बात करते होते हैं कि आलमे बरज़ख में है। तो बरज़ख एक ऐसा पर्दा होता है जिसके उधर देखा नहीं जा सकता। ना ही आजकल कोई उधर से आके किसी ने बता दिया उस कैफ़ियत के बाद कि वो कैसा सिलसिला था और क्या हुआ, और ना ही कह लीजिए कि यहाँ जो रहने वाले हैं इनकी एक्सेस या इल्म या अकल वहाँ तक है। सबसे पहले तो ये चीज़ ज़हन में रख लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो-जो चीज़ें कुरान में बता दी, और जो कह लीजिए कि आपको और एक्सप्लेन करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब आपको दे दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ जो है वो आपको खोल-खोल के बता दी। शहीदों के बारे में आपने पढ़ा है, कुरान में ही आया था कि उनको मुर्दा ना कहिए, ना समझिए, अल्लाह के यहाँ ज़िंदा हैं और रिज़्क दिए जाते हैं, लेकिन हमें उनकी ज़िंदगियों के शऊर नहीं है। यानी ये कुरान की आयत आती है कि तुम्हें उसका शऊर नहीं है। तो जिस चीज़ का शऊर नहीं है हमें, उसके ऊपर हम बात कर नहीं सकते। एक ये भी बड़ी जानने वाली, जब कुरान के तर्जुमे तफ़सीर करते हैं तो बड़े खूबसूरत आपको इल्म मिलते हैं वहाँ से, कि अकल एक लेवल होता है और शऊर उससे ऊपर का लेवल होता है। अकल का मामला ये होता है कि दुनिया के इदारों, दुनिया के इंस्टीट्यूट और आपके मुशाहिदे और तजर्बे, वहाँ से आप अकल सीखते हैं। और अकल जब आ जाती है, अकल सीख लेते हैं, तो अपने अकल से जो फैसले लिए जाते हैं और उस अकल से जो बात हज़ की जाती है, उसको शऊर कहा जाता है। ये शऊरी फैसला हुआ, ये शऊरी बात हुई। अल्लाह के कुरान ने जब बताया कि जो दुनिया से रुखसत हो गए, उनका जो कह लीजिए, वो जो अल्लाह की राह में गए हैं, वो ज़िंदा हैं, और उनका ज़िंदगी किस तरीके से है और कैसे वो उनको रिज़्क मिलता है, तुम्हें उसका शऊर नहीं है। यानी इल्म अक़ल होने के बावजूद अगर तुम इल्मी और अक़ली फ़ैसला भी करो, तो तुम्हारे पास वो शऊर नहीं है जो उनका मामला है। इसलिए ये बात जो है, इसके बारे में हम बिल्कुल फ़ैसला-कुन कोई चीज़ नहीं कह सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कह लीजिए अल्लाह के बंदे थे, जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह के राह में जान से जाने वाले हैं, उनकी चीज़ें जो हैं वो महफूज़ रहती हैं। पर महफूज़ अमाल हैं, अरवाह हैं, जिस्म और बदन जो होते हैं, इनका मामला थोड़ा-सा मुख्तलिफ आता है। इसकी तहकीक बड़ी डिफरेंट आती है। अल्लाह करीम हमें उनमें शामिल फरमाए जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज़ रखे। जी, एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही खूबसूरत आपका प्रोग्राम है, और इतनी जो बातों के जो तीर आप छोड़ रही हैं, तो वो दुआ है कि हमारे भी दिलों को मुनव्वर करें, और हमारे भी इतने दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करे, जो इतने खूबसूरत जो तीर आप छोड़ रही हैं हमारी मंजिलों को तयन करने के लिए। आमीन आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एक बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक जुज़ादे आपको और अल्लाह करीम हमारी कोशिशों और दुआओं को कबूल फरमाए। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको आप देखकर कैसे हैं? बहुत बहुत दिल को सुकून मिलता है एंड खुशी होती है, क्योंकि आपकी बातें जो है ना हमको बहुत सी मालूमात फराहम करती हैं। तो बाजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब इंसान बिस्तर पर लेटा होता है, जाग गिरा होता है, तो जिक्र ज़िकार कर सकता है, बैठ नहीं सकता तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेट कर। जी, मैं अभी आपको बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन चन्ना मिसिस मलिक बोल रही हैं। काफी दिनों के बाद आज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਦੇਖਿਆ ਖੈਰੀਅਤ ਸੀ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। वैसे ही कुछ दिनों की छुट्टी हुई थी, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने आसान तेरा बेटा अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल करे समेत बाल बच्चे समेत अहले खाना समेत इस्लाम चैनल अल्लाह ताला सब से रहमत नाज़िल। बेटा मैं मेरे दो सवाल ने कि मैं तुम पता बीमार से मैं बहुत 90 साल की बुढ़ी औरत सा, मैं सिर्फ ये पूछना है कि जैसा जदा कि उस दिन इस्लाम चैनल से मैं पूछा था क्या सी ईशा की नमाज से विश्राम से पहले तुम पढ़ सकते हो। ईशा की नमाज भी लेट ही होगी, सन पता 11 पौने 12 बजे ने, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? आप फिर पूछिए कि तहज्जुद की बात कर रहे हैं। जी जी बेटा जी, तहज्जुद आप किस वक्त पढ़ना चाह रहे हैं? ये उन्होंने क्या सी कि ईशा की नमाज विश्राम से पहले तुम पढ़ सकते हो कि जरा इन्ना बुढ़ा बंदा वे बीमार हो वो पढ़ सकता है। बिल्कुल सही, मैं बता देती हूँ। दूसरी गल ये है कि मैं इन चीज़ों की ख्याल से नहीं, पर फिर भी मैं जरूर तुहानू अर्ज कर रहा मैं ऐसे तो मेरी तहज्जुद तो बाहर जरा घट होगी। की मेरी बड़ी बहू है तो मैं वहाँ दोवें थी, और एक बहुत सरसब्ज बाग ये फलों का भरया आया, और मेरी झोली च आलू बुखारे ने एक दाना जो है वो मेरे हाथ से मैं मुंह च नहीं पाया। मेरी बड़ी बहू जी मेरे को कहती अम्मी जरा अगे चलने, मैं क्या पुत्र अगे इन्ना गहरा जंगलात से बाग ने इतने रौनक इतने ही मैं क्या। जी, मैं आपको भी बता देती हूँ। जी, तो पहले आप जो बता रहे थे, कोई पूछ रही थी सिस्टर कि वो जब बिस्तर पे लेटी होती हैं, तो उनको नींद नहीं आती है, तो काफ़ी देर लेटी रहती हैं, तो क्या वो ज़िक्र कर सकती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको टाइम दिया है, ये ज़िक्र के लिए ही दिया है। जब आप कोई कह लें कि इंतज़ार किसी चीज़ का कर रहे हैं, तो आपका रब तो आपके पास मौजूद है, उससे बात कीजिए। तो आपका ये रात को बिस्तर पे लेट के तज़किरे करना, ज़िक्र करना, अज़कार पढ़ना, ये आपके लिए बहुत ही खूब और बहुत ही आसान है। कुरान की एक आयत आती होती है और उन लोगों की ख़ास सिफ़त बयान की जाती है कि जो बिस्तरों पे लेटे हुए, करवटें बदलते हुए अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। तो आप ज़रूर जब तक आप जागती रहती हैं, आप अपने बिस्तर पे लेटी हुई होती हैं, ज़रूर आप अज़कार किया कीजिए। रात के अज़कार में सूरह मुल्क पढ़ने का होता है। आप जो अज़कार दूसरे बताए जाते हैं, तस्बीहात कई होती हैं, उनको पढ़ते रहिए। उसके अलावा भी जो भी आप पढ़ना चाहें, आप उस वक़्त में पढ़ सकती हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और बाज़ दफ़ा आप जब
लेटे हुए हैं, तो अक्सर औकात जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, मेरे ऐसे ख्याल आ रहा है कि शायद आपके ज़हन में वो हो कि अगर आपका वुज़ू नहीं है, तो फिर भी आप अज़कार पढ़ सकते हैं, अज़कार फिर भी पढ़े जा सकते हैं। एक और बात इसके साथ ही रिलेट ये होगी कि कोशिश किया कीजिए बावुज़ू होके लेटिए, इसलिए कि बावुज़ू होके लेटने और सोने से आपके लिए अल्लाह के फरिश्ते खड़े होके सारी रात आपके पहलू में दुआएँ माँगते रहते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही खूब मामला होता है। आंटी बात कर रही थी और वो पूछ रही थी कि इशा की नमाज को वक्त से पहले अदा करना। अब ये कुछ जो है आपकी कंडीशन मुख्तलिफ होती है, यानी बाज़ दफ़ा अगर बच्चे हैं तो उनको हम नमाज का आदी बनाने लगे हैं, तो वही होता है कि उनको अगर वो सुबह उनके स्कूल जल्दी हैं तो यही कहते हैं कि मगरिब के थोड़ी देर के बाद, यानी अक्सर औकात तो मगरिब के 1 घंटा के बाद तुम इशा भी पढ़ लो और सो जाओ। और बच्चों का और बुजुर्गों का ये एक ही मामला आ जाता है। जब बुजुर्ग भी, उनको सेहत उतनी दुरुस्त नहीं है या वो उतना इंतज़ार नहीं कर सकते, तो वो मगरिब के बाद अपनी नमाज को, इशा की को 1 घंटा का अगर आप उसमें वक़फ़ा डाल देते हैं तो बहुत ही खूब है। तो आप उसको इशा को पढ़ के तो सो सकते हैं। गो कि अभी अज़ान नहीं हुई है, तो उससे पहले इसको अदा किया जा सकता है। तहज्जुद का भी ऐसे ही होता है कि अगर आप देर से जो दरमियानी पहर, तीसरा पहर है, उसमें नहीं उठ रहे और नहीं उठ सकते, मुश्किल है, तो फजर से कुछ देर पहले उठ जाइए और फजर का टाइम शुरू होने से पहले कुछ नवाफिल या कुछ दुआएं जो है वो पढ़ लीजिए, वो आपकी तहज्जुद में शामिल हो जाती हैं। जो ख्वाब की बात आप कर रहे हैं, उसका जो टाइम होता है और प्रोग्राम होता है वो अलहदा होता है, तो आप उसमें, वैसे आपकी ख्वाब बहुत खूब लग रही है इसलिए कि बागात और फल जो हैं ये अल्लाह की रहमतें होती हैं, तो वैसे इनकी ताबीर जो है आप दूसरे प्रोग्राम में वहाँ से पूछ सकते हैं और इनके टाइम भी होते हैं, तो उस टाइम के साथ पूछना होता है। जी, हम बात को जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाह के फ़यूज़ व बरक़ात की बात हो रही है, बिस्मिल्लाह की अहमियत व फ़ज़ीलत की बात हो रही है। जो अल्लाह के कुरान का हर्फ़ हो और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सूरत से पहले उस आयत को इतना महबूब समझा कि हर सूरत से पहले भी वो लिखवाई गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक ही तरतीब हुई। तो वो हम उसकी फ़ज़ीलत और अहमियत को कैसे बयान कर सकते हैं या कैसे कह लीजिए जान सकते हैं, पर ये यकीन है कि बहुत ही फ़ज़ीलत व अहमियत के ये अल्फ़ाज़ हैं, इसलिए उस यकीन के साथ हमें ये अल्फ़ाज़ अपनी ज़ुबानों से जारी करने हैं। अपने मामलात, अगर कोई लिबास पहनेंगे तो बिस्मिल्लाह कह के पहनेंगे, तो क्या होगा? ये गुरूर व तकब्बुर का लिबास नहीं होगा, आजिज़ी, इनकिसारी और कह लीजिए अल्लाह की शुक्रगुज़ारी के लिबास होंगे। इसी तरीके से किसी सवारी पे बैठने लगे हैं, तो उस सवारी पे बिस्मिल्लाह कह के बैठिए, ताकि अल्लाह के नाम से बैठें, आपके अंदर तकब्बुर और गुरूर ना आए, आपके अंदर अल्लाह का शुक्राना आ जाए। तो ये जो अल्फाज होते हैं, ये बड़े से मानी और मफ़हूम लेके आते हैं, ताकि हमारा ये जो 2 रास्ते थे और 2 जो शाहराहें जा रही थी, वो एक मुंतहिब हो जाए, 2 इकट्ठी चल रही हैं, एक ख्वाहिशों की और एक दीन की। हमने दीन को सिलेक्ट करना है, ख्वाहिश को हटाना है। उसको हटाने के लिए मेडिसिन होती, ये अल्फाज होते हैं, ये मेडिसिन होती है। उसके ज़रिए से, जैसे कि आपको अक्सर बताया जाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये एक वज़ीफ़े की तरह, एक विर्द की तरह अपनी ज़ुबानों से जारी रखा कीजिए, ताकि शैतान जो है आपसे दूर हटता रहे। पहले हम बात कर रहे थे कि वो कलिमा एक बार कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, तो उसका देख लीजिए अजर सवाब क्या है कि ज़मीनों आसमान के एक पलड़े में अगर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए, दूसरे पलड़े में ज़मीनों आसमान को रख दिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह वज़न में भारी है। तो ये हमारी ज़ुबान से बड़ी आसानी से निकलता है। बात को जारी रखेंगे कॉलर से बात करने के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। बाजी क्या हाल है, ठीक हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बस शुक्र। अल्लाह का शुक्र है जो आपका इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं बड़ी शौक से सुन रही हूँ बैठ के। तो बाजी मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा हो गया है, ये रात को ख्वाब को आता है कि मैं मुझे ये जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हुई है किसी वजह से, तो इंशाल्लाह फिर बात होती है। तो ये कह लीजिए कि हम बात कर रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर। जो कोई 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, इसलिए कि अज़कार के रिमाइंडर आ रहे हैं, तो अज़कार को हम लेके चलते हैं। यानी जो 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसको
जो अजर सवाब मिलेगा वो इतना होगा कि जैसे 100 ऊंट जो है वो उसने माल असबाब से लदा हुआ अल्लाह की राह में दे दिया। 100 ऊंट माल असबाब से लदा हुआ अल्लाह की राह में देने से जो सवाब मिलता है वो आपको 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मिल जाता है। तो ये अपनी जुबानों से इन कलिमात को जारी रखने से क्या आपके लिए अजर व सवाब है। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? आपकी दुआएं हैं, अल्लाह के एहसान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मिस किया आपको काफी दिनों से। बहुत आपने शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से कुछ ब्रेक आया है। हाँ, अब आज फिर मैं सोच रही थी कि ना आज दूसरे प्रोग्राम में पूछेंगे कि आप कहाँ हैं। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो पूछना चाहेंगी? जी, मैंने ये पूछना है कि भी जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए अगर हम कोई दुआ करते हैं, कोई ख़त्म या कोई कुछ देते हैं गरीबों को, तो उससे तो उनको फायदा होता है, उनकी रूह खुश होती है, उनको वो मिल जाती है चीज। लेकिन इस दुनिया में जैसे मुझे कोई कहे कि भी मेरा बेटा चला गया इस दुनिया से, तो आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है, वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई कहते है। हैं कि तू ये काम कर ले, तेरा बेटा अगर तू ये चीज लेगी, ये करेगी तो तेरा बेटा खुश होगा। उसको क्या पता मेरी माँ क्या गा रही है क्या नहीं कर। अल्लाह करीम आपको सब्र दे, अल्लाह करीम आपको हिम्मत दे, अल्लाह पाक आपके अच्छे कलिमात, अच्छी दुआएं अपनी औलाद के हक में कबूल करे। दिल छोटा ना किया कीजिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे 70 माओं से बढ़ के मोहब्बतें करने वाला है। वो कभी नहीं चाहता उसके बंदे तकलीफ और दुख में हो। ये हमारे लिए इम्तिहान गाह है दुनिया, ये आजमाइश है। उस आजमाइश से सब्र के साथ गुजरना है, अल्लाह पे तवक्कुल के साथ गुजरना है। अल्लाह करीम आपको हिम्मत दे। मुझे सारे कहते हैं कि तू ये कर काम, तो तू ये अगर तेरा बेटे को पता चलेगा कि मेरी माँ ने ये किया तो बेटा खुश होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ उनको क्या पता होता है कि ये जो इस दुनिया में रह रही वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उस स्वाब तो चलो उनको मिलता है, लेकिन मेरे मेरा बेटा काफी कुछ छोड़ गया, तो सब कुछ सारे कहते तू ये चीज ले तेरा बेटा खुश होगा। उसको क्या पता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उन चीजों में। मैं आपको अभी बता देती इंशाल्लाह। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए कि जो भी आप नेका माल करते हैं वो वहाँ पे उनको बताए जाते हैं कि आपके आबा, आपके बच्चे, आपके बड़े आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, इस वजह से आपके दर्जात बुलंद हो रहे हैं। और आप उनके लिए जो सदका खैरात करते हैं और जो कह लीजिए सदका जारिया करते हैं, कोशिश कीजिए काम वो कीजिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हैं। तो उन तक ज़रूर अजर व सवाब पहुँचता है और उनको बताया जाता है और उनके दिल मुतमिन होते हैं और हमारे दिल भी मुतमिन होते हैं। इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी, मेरी फैमिली को भी, इस्लाम चैनल उर्दू वालों को भी। और कोशिश कीजिए ये कलिमात अपनी ज़ुबानों से जारी रखिए, जाते हुए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।